Morning student, welcome you all. So today we are going to discuss semi-modal verb, that is ought to, need and dare. So in this particular video we will see the usage and examples of these modal verb. Alright, so let's start. Okay, so first we will see modal verb ought to. So what is ought to and what do we understand by this modal verb? So we use ought to when we want to suggest that it is a moral obligation or to do something. Alright, let's start. So there are some usage of the ought to modal verb. Alright, so as I already told you that modal verb suggests that it is a moral obligation. There are two type of suggestion, moral obligation and to do something. Alright, so morally बोलते हैं. So first is okay. So first is ought to is used to express some moral duty or social obligations. So देखिए ought to क्या करता है, moral duty हमें बताता है कि आपकी क्या क्या moral duty होनी चाहिए और socially क्या obligations आपकी होनी चाहिए. See the examples. We ought to love our neighbors, यानी हमें अपने neighbors से प्यार करना चाहिए. So ought के साथ हमेशा to का यूज करेंगे. semi modal है तो हम to का यूज कर सकते हैं. Clear? मॉडल्स के साथ हम टू का यूज नहीं करते थे, एज इट इज मॉडल आते थे, इन्फिनिटिव्स नहीं आते थे. सो हेयर हम यहाँ पे शुड का भी यूज करते हैं. वी शुड लव आवर नेबर्स. तो और टू भी हम कुछ कह सकते हैं, तो दोनों ही करेक्ट है, दोनों रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट इज सोसाइटी ऑट टू लुक आफ्टर द हैंडीकैप. मीन्स सोसाइटी को क्या करना चाहिए, जो हैंडीकैप जो डिसेबल्ड पर्सन है उनकी देखभाल करनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ought to obey their teachers. So स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए. Alright, so note, see the note. The idea of obligation can be expressed with should and must also. Means we can use this obligation with sound and must. Alright, so अब sound और should और must में हम क्या difference देखते हैं. See, when we use must ना, we want to insist that something should be done. मतलब हमको insist करना पड़ता है कि ऐसा होना ही चाहिए, compulsion की situation है. But should में हमारा क्या है, express करते हैं जब obligations, तो आपको करना चाहिए, आपकी एक moral duty बताते हैं. However, ought to is used when a feeling of delay is involved. जब ought to कब यूज होता है, जब आपकी feeling उसमें involved होती है. Alright, so next note is the negative form of ought to is ought not to. Oughtn't करके कोई word नहीं होता. Negative अब जब make करोगे तो you have to write ought not to. Clear? Okay. Now see the next one. Ought to have प्लस द पास्ट पार्टिसिपल्स. मीन्स मैंने आपको बताया था जब भी हम हैव का यूज करेंगे तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज करेंगे. सो द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेटरी एक्शन टू द पास्ट व्हिच वाज नॉट परफॉर्म. मीन्स ऐसा कोई एक्शन, ऑब्लिगेटरी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और परफॉर्म नहीं किया गया हो, यानी पास्ट में होना चाहिए था बट वो परफॉर्म नहीं किया गया हो, उस कंडीशन में भी हम ought to have का यूज करते हैं. सो देयर आर सम एग्जाम्पल. फर्स्ट, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. You ought to have helped. So I told you so many times, if we want to past perfect tense, तो हम क्या यूज करेंगे, have के साथ help, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है. So you ought to have helped your brother in difficulty. It means तुम्हें अपने भाई की डिफिकल्टी में उसका साथ देना चाहिए था. So ये काम कब होना चाहिए था, पास्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इज he ought to have looked after his aged parents.
यानी उसको अपने बूढ़े एज मीन्स मतलब अपने बूढ़े माँ बाप की क्या करनी चाहिए थी, मतलब उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। You ought to have prepared well for the examination, यानी एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। क्लियर? सो जब हम पास्ट की कोई कंडीशंस बताते हैं, पास्ट के बारे में कोई सजेशन या एडवाइस देते हैं, सो यू हैव टू यूज ought to have प्लस past participle. Clear? Next is ought to used. So there are some usage one by one. Let's see. Advise or make recommendation. Where we use it? If we give advice to someone और कुछ recommendation के लिए हम इसका किसका यूज करेंगे? ought to का, right? Express, next is express assumption or expectations as well as strong probability. Means assumption के लिए यानी कोई अनुमान लगाने के लिए आपकी कोई expectation है उसके लिए, और ये सब किस में होना चाहिए? strong probability के साथ। like ought not without to is used to advise against doing something. ought not कब यूज होता है? without to, इसमें to का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव में ought not to ऐसे यूज नहीं करोगे, without to होगा। कब यूज होगा? जब किसी को आप एडवाइस दे रहे हो कि नॉट टू डू समथिंग। क्लियर? अगेंस्ट में एडवाइस दे रहे हो। लेट्स सी सम एग्जांपल। यू ऑट टू स्टॉप स्मोकिंग। अब देखो क्या हो रहा है, अब आपको क्या करना है? रिकमेंड कर रहे हैं, इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं? रिकमेंड कर रहे हैं कि तुम्हें क्या करना होगा? स्मोकिंग को बंद करना होगा, रोकना होगा, राइट? रोकना चाहिए। नेक्स्ट इज जिम ought to get the promotion. It is expected because he deserve it. अब देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा? प्रमोशन मिल जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि वो पर्सन जो जिम है वो क्या करता है? डिजर्व करता है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दिस स्टॉक ought to increase in value. जो स्टॉक है वो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये इंक्रीज होना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। मीन्स हम संभावना लगा रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए। सो मार्क्स ought not drink so much. Advise against something, notice there is no. Okay? So टू, अब देखिए आप नोटिस करो यहाँ पे हमने टू का यूज नहीं किया बिकॉज we use here not. all right, so mark out not drink so much. mark को क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ज्यादा पीना नहीं चाहिए। clear? okay, see this picture. in this picture ought to giving advice with a sense of moral obligation. अब एक sense of moral obligation है, ये mother है and she has two children, one is girl and other one is boy. So the mother said to her baby boy, you ought to be nicer to your sister. क्या बोल रही है? कि तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। So she giving advice to her son कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारी क्या है? moral obligations है। clear? ओके, अब आप थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लीजिए विद सम हिंदी मीनिंग्स, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज ought to and what is ought to am. So here the word ought to means चाहिए and ought to have means चाहिए था. Next is ought to is used to express duty or moral obligations. We already discussed about this कि ought to कब यूज होता है? एक तो ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशंस बताने के लिए। नेक्स्ट इज देयर आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, संदीप को जाना चाहिए। संदीप को जाना चाहिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट सेंटेंस है, सो संदीप ought to go. नेक्स्ट सेंटेंस, संदीप को नहीं जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस और simple sentence. So Sandeep ought not to go. Clear? Next is क्या संदीप को जाना चाहिए? अब जब आप interrogative make करते हो, so you have to put the modal verb first and
इन मीन सेकेंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो आप इंटरचेंज कर दोगे इनके प्लेस को। नेक्स्ट इज मुझे कब जाना चाहिए। सो मुझे कब जाना चाहिए, तो कब की कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या यूज किया, व्हेन। ओके, सो जाना चाहिए, चाहिए में हमने लगाया ought, मुझे मीन्स आई टू गो। क्लियर, हमें यहाँ कहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। सो द आंसर इज वेयर ought we not to throw the dust। उसे किसका साथ देना चाहिए, whom ought he to support। हर नागरिक को यह करना चाहिए। अब करना चाहिए, सो एवरी सिटीजन्स, हर नागरिक क्या हो गया, एवरी सिटीजन्स ought to do this। हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, वी ought to respect पेरेंट्स। नेक्स्ट इज मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए, आई नॉट टू इवन थिंक सो। नेक्स्ट इज यू, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। अब we were talking about the present tense, now we are talking about the past। okay, so past condition, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। अब थी है तो क्या आ जाएगा, you ought to have helped the poor। हमें सच बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रेजेंट है, सो क्या हमने यूज किया, we ought to speak the truth। सी, अब यहाँ पे आपने देखा, आप बोलोगे मैम कि यहाँ पे तो गरीबों लिखा है, राइट। यहाँ पे मैम आपने तो क्या लिखा है, गरीबों लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पुअर करा है, पुअर्स क्यों नहीं हुआ। सी, जब हम किसी भी वर्ड के पहले द का यूज करते हैं, इट मीन्स हम उनकी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करें। तो जितने भी पुअर हैं उनके बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी द का यूज किया जा चुका है। क्लियर, सेम इन अ सिमिलर वे द ट्रुथ भी है कि सबके सच बोलने की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑलराइट, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी ought not to tell a lie। So now next we will start the modal verb need। अब need क्या होता है, need means आप सबको पता है, need यानी जरूरत। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट कि अब जरूरत की कंडीशन में यानी need की कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली dare और need are different from other verbs। Let's see how। नीड इज यूज्ड इन टू वेज। नीड्स दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, लाइक एज अ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब में भी हम नीड का यूज करते हैं, लाइक हमने लिखा ही नीड्स टू बी पोलाइट, ही नीड्स टू बी पोलाइट टू अदर्स, यानी उसको दूसरों से पोलाइट होने की जरूरत है। सो दीज आर सम रेगुलर वर्ब्स। सो वी नीड टू रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क। हमें क्या है, हमें रेस्ट की जरूरत है कब, आफ्टर हार्ड वर्क। Okay, so as a model used only in, so needs defined two condition। The first, it is used as a regular verb, and second, it is used as a modal verb। All right, so as a modal used only in question and negative sentence। So as a modal need कब use होता है, only in interrogative sentence and in negative sentence। So in question, need is used wherever there is a strong element of doubt or when the speaker expects a negative answer। See, हम need का कब कब यूज करते हैं, जब एक strong element होता है या हमें बहुत strong doubt होता है और स्पीकर के एक्सपेक्ट्स होती हैं नेगेटिव आंसर्स वो देते हैं, जैसे need I go there। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तब भी हम नीड का यूज़ करते हैं। सो नीड नॉट इज यूज टू एक्सप्रेस द लैक ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशंस। अब नीड नॉट कब यूज़ करते हैं, जब नेसेसिटी की मतलब ज़रूरत कम हो या ऑब्लिगेशंस कम हो किसी काम को करने की, मीन्स टू डू समथिंग, इट इज़ अपोजिट ऑफ मस्ट। तो ये किसका अपोजिट हो जाएगा, मस्ट का अपोजिट हो जाएगा। मस्ट में क्या था कि नेसेसिटी होती है, ऑब्लिगेशन होती है टू डू समथिंग, बट इन केस ऑफ नीड नॉट, द नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है मस्ट के, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, यू नीड नॉट सी हिम, जस्ट राइट अ लेटर। तुम्हें उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखो, केवल उसको लेटर लिखो। वी नीड नॉट हरी, वी हैव येट प्लेंटी ऑफ टाइम।
हम जल्दी में नहीं है, मतलब जल्दी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या है, बहुत सारा समय है। नेक्स्ट इज द पास्ट ऑफ नीड इज एक्सप्रेस्ड विद नीड हैव। अब देखो, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा जब भी किसी मॉडल के साथ हैव का यूज करेंगे विद द पास्ट पार्टिसिपल, वही क्या हो जाएगा, उसका पास्ट हो जाएगा पर्टिकुलर मॉडल का। सी द एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज नीड हैव ही टेकन ऑल दैट ट्रबल, मतलब उसे सारी प्रॉब्लम को लेने की जरूरत थी। ही नीडंट हैव टेकन all that trouble और he didn't need to take all that trouble, यानी दोनों कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। देखो, अब नीड के पहले अगर didn't यूज करेंगे तो आपको have और past participle की नीड नहीं होगी। क्लियर? सो he didn't have taken all that trouble, यानी उसको सारी मुसीबतें लेने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? और ही डिडंट नीड टू टेक ऑल दैट ट्रबल, यानी उसको सारी मुसीबतें लेने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? तो दोनों कंडीशन सेम है, एग्जाम्पल सेम है, बोलने में भी सेम है। ओके, सो एज अ modal verb, so the modal form of need is used mainly in question and negatives. क्वेश्चंस में आते हैं, नेगेटिव्स में आते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर नेगेटिव वर्ड्स लाइक हार्डली एंड ओनली। अब देखो, नेगेटिव वर्ड्स जो हार्डली और ओनली हैं, इसके साथ भी आप नीड का यूज कर सकते हैं। यू नीड नॉट वर्क टुडे, तुम्हें आज काम करने की जरूरत नहीं। नीड आई गो नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए। नीड वी रिजर्व सीट्स, क्या हमें सीट रिजर्व करने की जरूरत है। ही नीड ओनली से व्हाट ही वांट्स एंड इट विल बी ग्रांटेड, बस उसे ये कहने की जरूरत है कि उसे क्या चाहिए और वो पूरा हो जाएगा। आई नीड हार्डली, सो देखो हार्डली वर्ड हुआ, आई नीड हार्डली एड that you are always welcome, means मैंने ही कभी मुश्किल से ये कहा होगा या ऐड किया होगा ये बात कि तुम्हारा हमेशा क्या होता है, वेलकम किया जाता है। क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब नीड। सो लेट्स सी द मॉडल वर्ब डेयर। ओके, सो डेयर तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि ट्रूथ एंड डेयर का आप लोग सब गेम भी खेलते होंगे, राइट? तो ये वही डेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डेयर मीन्स टू वेंचर। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन। सो डेयर का बेसिकली मीन क्या हमने निकाला है, टू वेंचर से, और ये किसमें मोस्टली यूज होता है, ये होता है नेगेटिव में और क्वेश्चंस में मोस्टली हम इसका यूज करते हैं। सो टू वेंचर का मतलब क्या है, टू टास्क या कोई बिजनेस, आप टास्क से ले लीजिए कि पर्टिकुलर कोई टास्क होता है, उसके बारे में हम डेयर का बात करते हैं, तो इन अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में। सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट अपोज मी, वो मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। ही हाउ डेयर यू एंटर द गर्ल हॉस्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गर्ल्स हॉस्टल में आने की। सो जब हम किसी के अगेंस्ट में या हम किसी काम के या किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, राइट, या हिम्मत वाला जो वर्ड आता है वो यूज होता है, तो हम डेयर का यूज करते हैं। ओके, यूज ऑफ मॉडल डेयर। द रूल फॉर यूजिंग द मॉडल डेयर इज दैट इट इज यूज एट प्लेस वेयर वी नीड टू शो करेज, यानी जहां पर भी हमें करेज शो करनी है वहां पे हम किसका यूज करेंगे, डेयर का यूज करेंगे। सो इट इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव वे। जनरली किस में यूज होती है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वे में। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल्स। सो डेयर, once again see the definition of dare. Dare means to have courage or to be brave enough to face someone or something, यानी courage होना चाहिए, brave होने चाहिए वो आप किसी को face करने के लिए या किसी चीज को face करने के लिए। All right? Okay, examples. India is ready to dare. India is ready to dare एनी फॉरेन अटैक, यानी इंडिया क्या है, इंडिया बिल्कुल रेडी है किसके लिए, किसी भी फॉरेन अटैक के लिए। हाउ डेयर शी से दिस, की हिम्मत कैसे हुई या उसने ऐसा कैसे कह दिया, राइट। डेयर कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट अ चैलेंज। अब जब किसी को हम चैलेंज करते हैं तब भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं। सो देखो एग्जाम्पल देखो, आई डेयर यू टू ईट ऑल द फूड ऑन द टेबल, यानी मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ
कि तुम जितना भी फूड टेबल पर है वो खाकर बताओ। तो जब चैलेंज की कंडीशन होती है, सो दैट टाइम यू यूज डेयर मोडाइल वर्ब। क्लियर? सो आई डेयर यू टू प्रूव दैट माई ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, यानी मैं तुम्हें ये चैलेंज करता हूँ कि तुम प्रूव करके बताओ कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। सो द एक्सप्रेशन आई डेयर व्हाट सिंपली मीन्स परहैप्स। आई डेयर मीन्स ये जो सिंपली परहैप्स होता है कि क्या बता रहे हैं एक्सप्रेशन, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे कि डेयर, या अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम ऐसा करके बताओ। सो एग्जाम्पल आई डेयर से ही इज अ लायर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो क्या है, मतलब मैं बोलने की करेज रखता हूँ कि वो क्या है, वो लायर है। ऑलराइट, सो we end this topic here. I hope you all have must understand these semi-modal verbs, that is used to or sorry, ought to and need or dare. All right. So thank you for watching.